महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। एसटी मोर्चा कठुआ जिंदाबाद, एसटी मोर्चा कठुआ जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद। डॉक्टर साहब बल्ले बल्ले, सारे बल्ले बल्ले, गुलाब सिंह जी भैया एक मिनट देखो भैया भारत माता की जय। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। महाराजा गुलाब सिंह अमर रहे, अमर रहे। रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से, भारत माता की सभी लोग मेरे इमोशंस जुड़े हैं ऐसे सारी पूरी स्टेट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर महाराजा गुलाब सिंह माताएं जिथे आएगी महाराजा माता की इस मूर्ति को साढ़े आस्ते सारे आस्ते बड़ी गर्व ते संतोष की गल है। डोगरा साम्राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति का विमोचन होया है। अज तो लगभग 2 बरे पहले डोगरा राज की स्थापना हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह और राजा गुलाब सिंह की ताजपोशी की, जिहड़े बाद महाराजा गुलाब सिंह के नां कन्ने जाने गए।
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਨਿਆਂ ਦੇਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ 1925 ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਿਆਂ। ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 60-70 ਬਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਅੰਤਰਾਲ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਠੂਏ ਲਖਨਪੁਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ, ਨਾ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਵੀ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੀੜੀਆ ਗਣਿਆਲ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਇਓਟੈਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਗਿਆਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਨਿਭਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਖਪਾਈ ਹੋੜੇ, ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਭਵਯ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਕੀ ਆਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਗ, ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਗ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਫਸਟ ਏਡ ਤੇ ਦੂਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਸੀ ਪਹਿਲੇ ਗਾ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਰਦਾ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਹੋੜਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 21 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 2 ਵੱਡੇ ਡੋਗਰਾ ਸਪੂਤਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਨੋਰ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂ कश्मीर ਦੇ ਵਾਸੀ है। उनके नाम पर उत्तर भारत का पहला स्पेस सेंटर स्थापित किया गया। लाल सिंह का ये कहना है कि ये जो प्रतिमा लाई गई है इसमें कहीं ना कहीं मेरा रोल है। लाल सिंह का ये कहना है। सबका रोल है ना इसमें, क्या सबका रोल है, आपका भी रोल है। महाराजा सबके थे, किसका रोल नहीं है? आप सबका रोल है। महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति में सबका रोल है। और मोदी जी ने यही कारण है कि आज सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना रोल हमारे साथ जोड़े। भारतीय जनता पार्टी का रोल इतना सर्वोपरि हो गया है कि हर पार्टी के लोग अपना रोल हमारे साथ जोड़ना चाह रहे हैं। अगली मूर्ति पीओके में कब लगेगी, कब कितनी जल्दी? 1994 में सर्व समिति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया था जब सरकार नरसिम्हा राव जी की थी संसद में, कि यदि कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई विषय है तो वो मात्र इतना कि जो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो इतने वर्षों के बाद भी पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, उसे किस तरह से पुनः भारत में सम्मिलित किया जाए। और ये हमारी प्रतिबद्धता है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात का संकल्प करती है उस समय उसका समझ नहीं आती, उसको गहराई से सोचा नहीं जाता। जब हम 370 हटाने की बात करते थे तब भी व्यंग किया जाता था। आज आपने देखा ये होता हुआ दिखा। जब वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में, तो ये कहा था कि बादल छटेंगे, सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, तब भी किसी ने कश्मीर फाइल फिल्म इन दिनों बड़ा चर्चा में है सर। लेकिन मोदी जी के होते हर एक वो संकल्प जो अधूरा रह गया उसकी हम सिद्धि करने का। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है कि जो कश्मीर फाइल है उसको देश भर से प्यार मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बता रहे हैं कि ये जो स्टोरी है वो कोकोनट है। कश्मीर फाइल को सर देश भर में प्यार मिल रहा है इसको विपक्ष द्वारा, लेकिन मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि ये कोकोनट स्टोरी है। बात अभी काफ़ी मीडिया के साथ चर्चा रही 2-3 दिन दिल्ली में भी। ये बात शायद इसलिए हो रही है कि बहुत से दूसरे टिप्पणीकार पूरा अध्ययन नहीं करते। यदि आप जगमोहन जी की किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस पढ़ लें, जिसका उन्होंने नया एडिशन भी जारी किया था अपने स्वर्गवास से 1-2 वर्ष पहले, एक घटनाक्रम प्रमाण सहित है। ये जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जैसा आप कहा कि
कि साहब ये कोकोनट है कि कौन सी वॉलनट है, वॉलनट है कोकोनट, चलो जो भी नट है, दैट इज ऑल्सो नट। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री, उनको समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष वही कह रहा हूँ, समय लगेगा। वो वन साइडेड कहा जा रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने उस दिन ये कहा कि इस सारे घटनाक्रम की, वैसे तो ये शुरू से ही नीतियों पर एक खलल था, नीतियों का 1947 से जो शेख अब्दुल्ला की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर नीतियां तय की जा रही थी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो उनकी दोस्ती थी उसके कारण उनका बोलबाला रहा। बाद में वो राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की एकॉर्ड के रूप में फिर से सामने आया। लेकिन जो इमीडिएट ट्रिगरिंग फैक्टर था जिसके कारण कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, वो था इन्हीं पूर्व मंत्री के होते हुए जिनका आप नाम ले रहे हैं, 1987 में जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के चुनाव में गड़बड़ की। आप पूरा पिछला इतिहास पढ़िए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट मफ नाम का एक स्थानीय दल बना था जिसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उन कैंडिडेट्स को हरा दिया गया। केंद्र में सरकार राजीव गांधी थी, उन्होंने आंखें मीच के रखी क्योंकि उनके आपस में एकॉर्ड थी। दूसरे शब्दों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिली भगत थी। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ सिलेक्टिव किलिंग का। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष की हत्या हुई थी, टीकालाल टप्पू। जो ये लोग कहते हैं ना साहब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, उनसे ये सबसे पूछे कि सबसे पहले किलिंग तो हमारे कश्मीर अध्यक्ष की हुई थी, फिर प्रेमनाथ भट्ट जो हमारे एक विचारक थे, उसके बाद लसा कोल जो आपके मीडिया के ही साथी थे, इसी प्रकार नीलकंठ गंजू जिन्होंने मकबूल भट्ट की फांसी की सजा दी थी। और उसके बाद एक ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन तत्कालीन ट्रिगरिंग फैक्टर 1987 का इलेक्शन था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने मिल करके उस इलेक्शन में धांधली की। वो सारे के सारे कैंडिडेट जो हार गए और वो सारा का सारा ग्रुप जाकर के JKLF की गोद में बैठा और उसके बाद आज़ादी के नारे लगने लगे और उसी के चलते चलते आगे। बल्कि जब तक जगमोहन आए तब तक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, फारूक साहब तो भाग गए थे। आप कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री तो लंदन चले गए थे तब। तो जो नेता अपने क्षेत्र अपने लोगों को छोड़ करके लंदन चला जाए और फिर ये आरोप लगाए, मैं नहीं समझता उसका कितने विश्वसनीयता है। कि तो 1996 में वो वापस लौटे थे। हमें तो हमारे दिमाग से कुछ भूला नहीं है, बाकी शायद भूल गए हो। सर कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जेनोसाइड हुआ उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी क्या चाहती? क्योंकि अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है उनको। आप एक बात समझनी होगी, हम सबको लोगों को भी समझानी होगी। पहली बार मोदी जी के आने के बाद और विशेषकर राज्यपाल शासन लगने के बाद किसी न किसी तरह की आरोपियों पर कार्रवाई प्रारंभ हुई है। वरना एक आपको उदाहरण और देता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, उनकी हत्या हुई थी। एयरफोर्स के वो अधिकारी थे, बस का इंतजार कर रहे थे, सरेआम उनकी हत्या दिन दिहाड़े की गई। जिस व्यक्ति ने की उसने नकाब भी नहीं पहना था कि वो चाहता था कि लोग देखें ये आई एम दी बॉस, आई कॉल दी शॉट्स। क्या नाम था उसका? यासीन मलिक। अभी तक उसको क्यों नहीं सजा हुई? उसको तो आप VIP बनाए रखे। पहली बार, आज भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, इसी सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। पहली बार 30 वर्ष के बाद मोदी जी के आने के बाद और केंद्र में अमित शाह जी के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद एक एक करके वो कार्रवाई होने की अब संभावना बनी है जो आज से 30 साल पहले हो जानी चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP ने दावा किया कि फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में ही वो आतंकी छोड़े गए जो उस दौरान पकड़े गए थे। क्या देखते हैं, क्यों आज वापस जम्मू के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? निश्चय ही आप ठीक कह रहे हैं, ये भी छोड़े गए। और उस दिन मैं हैरत में पड़ गया जब एक और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, महबूबा जी ने, कि साहब जब स्थापन हुआ तो भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। अब क्या है कि पत्रकार भी बेचारे इतनी जल्दी में वो भी भूल जाते हैं और हमारे नेताओं को भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने यकायक मेरे मुंह से सवाल निकला कि उस समय गृह मंत्री कौन थे? मुफ्ती साहब। और अपहरण किसका हुआ था? तो फिर हम तो दूर दूर तक नहीं थे कहीं। Thank you.